Good morning, children. I am your English teacher, Nafisa Edinwala, back with a new lesson or a new topic in English. It's the poetry, The Pilgrim. Now, children, to tell you, whatever lesson I have picked up for you, it's beautiful, very interesting, and I try to make it very nice and easy so that you can understand because we are not having physical class. Now let's start. This is the poetry, The Pilgrim. Yes. And before I start, let me start with some facts about the poem. Right? Now, what do you mean by facts? First of all, this poetry is written by anonymous, means we don't know the name of the poet. Now, before we start the poem, let's know the facts. I told you right now that the fact is we do not know the origin as to who has written the poem. That is why the reason is not known, so we have written the name of the poet as anonymous. Now that means the poet is unknown. Somebody has written, but we don't know who it is. Now, the poem was probably, I think it was written somewhere in 1900 when Britishers ruled India. This poem was known as a builder. Then as time passed, it became known as a bridge builder. And after the publication, the poem became so popular and very famous that it was named as The Pilgrim. Now, this poem, children, I tell you, is really very beautiful. It is a moral lesson. Moral lesson मतलब कुछ अच्छी बातें जो हमें ज़िंदगी में अच्छा कुछ करने को सिखाती है. It gives you a lesson to learn. And the main thing is the theme of the poem. The theme is, the central idea is what? That it is hard work, perseverance, confidence, and generosity. That means through this poem, the poet is trying to tell us the hidden meaning in the poem, I would say. Superficial meaning to जैसे आप read करोगे वैसे. But the real hidden meaning is that the poet wants us to be generous, to work hard, and to be confident and to have perseverance in our life. And that means you have to not only think about yourself, but also you must do something for your future people who is there for you. मीन्स आपकी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए भी कुछ अच्छा करो ताकि आपको हमेशा लोग याद रखें. Right? So, and that is for work for the future and for betterment of those around you. This is the real fact. Now, let's read the poem first, children, and open your textbooks. Today, we are going to do the Pilgrim poem, right? A pilgrim going lone highway came at evening cold and grey to chasm deep and vast and wide. The old man crossed in twilight dim. The chasm held no fear for him, but he paused when he reached the other side and built a bridge to spend the tide. An old man said, a fellow pilgrim, why waste your time in building here? Your journey ends with the close of the day. You never will pass this way again. You have crossed the chasm deep and wide.
Why build you here at eventide? The third paragraph. The pilgrim raised his old grey head. My friend, in the path I have come, he said, the fair lot after me today, a fair-headed youth, you who must pass this way, the chasm which held no fear for me, to the fair-haired youth may pitfall be. He too must cross the twilight dime. My friend, I built this bridge for him. Now, children, I tell you, if you read this poetry 2 or 3 times, you will really be fascinated. You will get lost in the poem. कि इतनी खूबसूरत पोइट्री है. Now today we are going to do every lines. I have picked up some pictures for you and where there are lines written on it. Let's start. The pilgrim. A pilgrim going lone highway. Lone मतलब सूना रास्ता. पिलग्रिम अकेला. पिलग्रिम कहाँ पे? पिलग्रिम मीन्स वॉट? जब हम 4 धाम की यात्रा या हज करबला जाते तो अकेले जाते, राइट? और वो अकेला जाता है. गोइंग लोन हाई, उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेला चला जा रहा है. पिलग्रिम, वो बूढ़ा हो गया है तो बुढ़ापे में ही लोग ज़्यादातर जाते. अभी भी टुडे दिस टाइम वी ऑल गो फॉर पिलग्रिम्स, यंग पीपल ऑल्सो गो. बट पहले के ज़माने में कैसे जाते? जब ओल्ड हो जाते थे, लाइफ से रिटायर हो जाते थे, तब दे वुड गो ऑन अ पिलग्रिम. सो दिस पिलग्रिम इज गोइंग अलोन. सी, इट्स अ लॉन्ग रूट एंड रास्ते में भी कोई नहीं है. ही इज़ वॉकिंग ऑल अलोन. नाउ when he is walking, it's already evening time, cold and grey. Now ये तो इवनिंग टाइम हो गया, कोल्ड एंड ग्रे. इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सुपरफिशियल मीनिंग. इनर मीनिंग इज द पिलग्रिम हैज़ बिकम, उसकी ज़िंदगी की शाम हो गई है. मीन्स ही इज़ बिकम ओल्ड. उसके बालों में सफ़ेद बाल है, ग्रे हेयर, कोल्ड न, और वो बहुत वीक हो गया है. सी, we can relate always 2 things, right? So first we will see the superficial meaning, right? Then I'll explain you the inner meaning of it. Came at evening, cold and grey, to the chasm deep, vast and wide. Chasm here stands for a valley. वो रास्ते में चलते 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 एक माउंटेन पे आ जाता है जिसमें वैली जो है बहुत गहरी है, डीप है. वास्ट, बड़ी और वास्ट है और डीप है. सो उसको वो एक पहाड़, जो माउंटेन है, उसको वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है और बीच में क्या है? खाई है, राइट? The old man crossed in twilight dime the chasm held no, और ओल्ड मैन ने वो खाई को पार कर दी और उसको जरा भी डर नहीं लगा. सो नाउ चिल्ड्रन, ये 4 लाइंस जो हैं उसका हम इनर मीनिंग ढूंढते हैं, ठीक है? जिंदगी की शाम हो गई है, ओल्ड हो गया है, वो ग्रे हेड है उसके हाथ, एंड वो उसको रास्ते में, इसकी ज़िंदगी की राह में उसको बहुत कठिनाई मिली है, राइट? उसको वो पार करनी है. ही हैज़ फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज. ही हैज़ टू ओवरकम दैट डिफ़िकल्टीज. सो चिल्ड्रन, ही क्रॉस्ड, उसने अपनी हिम्मत से वो डिफ़िकल्टी क्रॉस की है, मतलब वो वैली को वो क्रॉस किया. और ट्विलाइट टाइम इज़ व्हाट? जब सूरज डूबता है तो ज़्यादा अंधेरा भी नहीं होता है और ज़्यादा सनलाइट भी नहीं होती. इट इज़ अ टाइम बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर द सनराइज. सो मतलब उसकी अभी वो मरा नहीं, इसका मतलब वो मरा नहीं है, वो ओल्ड हो गया है. एंड द चैज़म हेल्ड नो फियर, उसने क्रॉस कर दी तो वो जरा भी उसको डर नहीं लग रहा है,
right? He paused when he reached the other side. जैसे ही वो माउंटेन की दूसरी तरफ पहुंचा, वो रुक गया. वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, वो रुक गया. मीन्स उसकी जिंदगी के पड़ाव में कुछ देर के लिए वो रुका. जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, कहीं पे वो ठहर जाता है एंड वो सोचने लगता है. यू कैन थिंक अबाउट योर पेरेंट्स. दे रुक गए हैं. दे आर थिंकिंग कि हमारे बच्चे का फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है. ही पोज्ड एंड व्हाट डिड ही डू? He started building bridge from one point to another in the mountain. So here the mountain is not the real mountain, but जिंदगी की डिफ़िकल्टीज़ को पार करने के लिए उसने एक ब्रिज बनाया. मीन्स अगर उसको कहीं पे भी तकलीफ़ आई तो वो उसके लिए फ्यूचर तैयार किया है कि किसी के लिए, मतलब उसको बच्चों के लिए या आने वाली नस्ल के लिए. सो इट इज़ सुपरफिशियल मीनिंग इज़ व्हाट? ब्रिज. अगर हम ऐसे ही जाएंगे तो पानी में चलेंगे तो पानी का बहाव हमें खींच कर लेकर जाएगा, मतलब हम डिफ़िकल्टी के मारे हार जाएंगे, राइट? सो he built a bridge. So it is not really he started building a bridge. He is trying to secure the future. Now, उसके साथ एक फेलो पिलग्रिम भी है, उसका फ्रेंड है. वो थोड़ा शेल्फिश है. ओल्ड मैन जो पिलग्रिम है वो बहुत काइंड हार्टेड जेनरस है, लेकिन उसका फेलो पिलग्रिम जो उसके साथ जो ज्वाइन हुआ है ज़िंदगी की राह में, आपके साथ भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, कुछ अच्छे कुछ बुरे. तो उसके साथ जो फेलो पिलग्रिम है वो क्या है? ही इज़ थोड़ा शेल्फिश. ही इज़ नॉट काइंड हार्टेड, ही इज़ नॉट जेनरस. And he's talking to this old man who is very nice, generous, kind. He's saying, "Old man," said the fellow pilgrim, "why waste your time in building here?" कि तू अपना वक्त क्यों गवा रहा है यहाँ पे ब्रिज बना के, मतलब क्यों दूसरों का सोचता है तू, राइट? अपना सोच. वो कहता है, योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे. यू नेवर अगेन विल पास दिस वे. ही इज टेलिंग कि तेरी जिंदगी की शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है और तू वापस ये रास्ते से नहीं गुजरेगा. दैट मीन्स कैन एन ओल्ड मैन बिकम यंग अगेन? नो. सो ही इज सेइंग व्हाई आर यू बॉदर्ड? बिकॉज तू ये रास्ते वापस नहीं जाने वाला, बिकॉज तू बूढ़ा हो गया है. See, there are two meanings. One is as if it is telling you that old man is walking, he is going to on a pilgrimage. हाँ, रात का अंधेरा हो गया है, तो रात का अंधेरा नहीं, मतलब उसकी ज़िंदगी में शाम हो गई है. ही इज़ बिकम वेरी ओल्ड और वो वापस ये रास्ते पे नहीं आएगा. मीन्स अगर आपको कहीं जाना तो वापस आ सकते हो ना, लेकिन एक बूढ़ा इंसान वापस जवान हो सकता है. तो इसीलिए वो कहता है, you will never again pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build here at eventide? He is telling कि तूने तो ये चैज़म जो डीप वैली है, अपनी ज़िंदगी की जो कठिनाइयाँ हैं उसको तूने पार कर लिया है. मीन्स यू हैव फेस दिस डिफ़िकल्टी एंड यू केम आउट एज अ विनर, कि तू जीत गया है. सो नाउ तू किसके लिए ये बिल्ड कर रहा है? ये वाई बिल्ड एट इवेंटाइड, मतलब ये रात के वक्त, मतलब आप जब बूढ़े हो गए हो तो तू किसके लिए इतना काम कर रहा है, राइट? बिकॉज आपके पेरेंट्स भी आपके लिए काम करते हैं ना. ओल्ड हो गए फिर भी वो आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे के लिए ये करना है, मुझे बच्चों के लिए ये करना है, बेटी की शादी करना है, बेटे की शादी करना है, उसके लिए बिजनेस सेटअप करना है. सो योर पेरेंट्स, तो ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग, दिस ओल्ड मैन इज थिंकिंग एंड दैट हिज फ्रेंड इज टेलिंग कि तू क्यों कर रहा है? तूने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें देखी है. इट इज़ ऑलरेडी डार्क मीन्स तू बुरा हो गया है. तू क्यों किसके लिए कर रहा है?
द ओल्ड मैन रेज्ड हिज हेड। ना ओल्ड मैन जो है अपना सिर उठाता है। ओल्ड ग्रे हेड, सी ही इज एन ओल्ड ग्रे हेड। माई फ्रेंड, he is telling the fellow passenger, sorry, pilgrim, my friend, in the part I've come, he said, कि जो रास्ते से मैं आया हूँ, मैंने जो जिंदगी का जो रास्ता तय किया है, मतलब रियली रास्ता नहीं, रियली रास्ते में भी बहुत सारी तकलीफें, लेकिन जिंदगी की राह में जो मैंने जो तकलीफें सही हैं, राइट, ही सेड, देयर आर फॉलोड आफ्टर मी टुडे, मतलब एक और फेलो है जो मेरे नक्शे कदम पे मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और वो पीछे पीछे कौन है? नई नस्ल, उसका बेटा और बहुत सारे जवान बच्चे, यंग मैन। फेयर हेयर्ड यूथ मीन्स यंग मैन। और यंग मैन कौन हो सकता है? उसका बेटा हो सकता है, जवान, बहुत सारे जवान बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिज पे तो कोई भी चलेगा ना। अ फेयर हेड यूथ यू मस्ट पास दिस वे, है कि ये फेयर हेड यूथ ये रास्ते से निकलेगा। द chasm which held no fear for me, to fair head youth may be a pitfall be, कि मेरे लिए ये chasm है, डीप वैली है, मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मीन्स मैंने हम जितनी भी मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टी आई है, मैंने आराम से उसको, आराम से तो नहीं, लेकिन मैंने वो डिफ़िकल्टी को ओवरकम किया है अपनी मेहनत से, अपने करेज से, राइट। अभी मुझे ज़रा भी डर नहीं लगता है, लेकिन मेरे पीछे जो फेयर हेड मैन है, मीन्स यंग फेलो है, हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों से डर जाए। टू द फेयर हेड यूथ मे बी पिटफॉल बी, मतलब उसको ये जो चैज़म है वो उसको गहरा लगे, मीन्स उसके लिए ये डिफ़िकल्टीज बहुत बड़ी लगेगी। हो सकता है कि वो ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी का सामना नहीं कर पाएगा। ही टू मस्ट क्रॉस, कि जब जब वो यहाँ पे आएगा तो उसकी भी जीवन की शाम हो गई होगी, मतलब उसकी भी लाइफ में अंधेरा हो जाएगा। माई फ्रेंड, आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, और इसीलिए मैं उसके लिए बना रहा हूँ ये ब्रिज, ताकि उसको कोई भी कठिनाइयों का ज़िंदगी में सामना न करना पड़े। दैट इज़ बिल्डिंग अ ब्रिज मीन्स रियली नॉट कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज, मतलब ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिससे उसको कभी भी ज़िंदगी में मुसीबत का सामना न करना पड़े। नाउ चिल्ड्रन, अगेन विल रीड द पोएम। A pilgrim going lone highway came at evening cold and grey. See, again the same thing. अभी समझ में आ रहा है? ये हम ऊपर की कि एक पिलग्रिम रास्ते में जा रहा है, शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, रास्ते में चैज़म डीप एंड वैली आती है माउंटेन में जो बहुत गहरी है। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन ट्विलाइट, मतलब वो रात के न दिन का, जब सूरज ढलने का टाइम कब होता है? अर्ली, जो लाइट होती है सूरज निकलने से पहले और सूरज डूब जाने के बाद जो छोटी सी डीम लाइट जो दिखती है, एकदम अंधेरा नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड ट्वीलाइट। द chasm held no fear for him, but he paused when he reached the other side and built a bridge to spend the tide. Now you understood children? अभी थोड़ी थोड़ी मीनिंग समझ में आ रही है कि उसकी, दैट मीन्स वो बुरा इंसान, हम सुपरफिशियल मीनिंग कि वो पहाड़ पर पहुंचा, वो डीप वैली थी, फिर उसको जरा भी डर नहीं लगा, ही पोस्ट, और जब वो दूसरे सिरे पे पहुंच गया तो थोड़ी देर रुका और फिर ब्रिज बांधने लगा। बट नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन यू बिफोर, कि ज़िंदगी की शाम हो गई है, उसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, एंड अभी वो बूढ़ा हो गया है, मतलब जल्दी ही वो मर जाएगा, कुछ मतलब उस ज़िंदगी की शाम हो गई है, ही इज़ नॉट दैट यंग। उसने
हर तकलीफ़ों का सामना किया ही, एंड दैट तकलीफ है अभी उसको जरा भी डरा नहीं सकती क्योंकि उसने बहादुरी से उसका सामना किया। ही पोज्ड ऑन अदर साइड, और फिर वो रुक जाता है एंड वो ब्रिज बनाने लगता है। तो ब्रिज नहीं, वो किसी का फ्यूचर बनाने लगता है। और किसका फ्यूचर? यंग फेलो हु इज़ गोइंग टू फॉलो हिम। ओल्ड मैन सेट द फेलो पिल, उसके साथ जो एक फेलो पिल वो कहता है, वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग ईयर, कि तू क्यों ब्रिज बना रहे हैं, मतलब तू किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। योर जर्नी, मतलब अभी तेरी जर्नी, मतलब तेरे तेरी जो डेस्टिनेशन है तू पहुंच गया है। अभी तेरी जो ज़िंदगी का सफ़र है, तेरा जर्नी मतलब सफ़र है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मीन्स तू बहुत जल्द मर जाएगा। क्लोज ऑफ द डे, अभी लाइफ के एंड होगा कहीं कभी ना कभी। अभी तू यंग नहीं है, यू नेवर अगेन विल पास, और तू वापस नहीं जा सकता, मीन्स यू कैन नेवर ग्रो यंग अगेन, यू आर नाउ ओल्ड। यू हैव क्रॉस चैज़म डीप एंड वाइड, तूने अपनी बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर लिया है, तो तू किसके लिए ये कर रहा है? वाई यू आर बिल्डिंग एट इवन टाइड, ब्रिज एट इवन टाइड, दैट मीन्स एंड ऑफ द डे, दैट इज इवनिंग, रात के वक्त क्या कर, मतलब रात के वक्त मतलब रियल इवनिंग नहीं, जिंदगी की शाम। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके लिए वो क्या हो गई? जिंदगी की शाम हो गई। द पिलग्रिम रेज्ड हिज हेड, grey old head. My friend, in the part I have come, he said, this followed after me. Means उसने followed means it's an old English जहाँ पे fellow को बोलते हैं, right? Follows, एक इंसान जो मुझे फॉलो कर रहा है। ही इज़ अ फेयर यूथ, मतलब मेरे यंग बच्चे हैं या यंग लोग हैं, हमारे पीछे एक नई नस्ल तैयार हुई है, वो लोग हैं, उनको वो चीज़ का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि उनके राह में भी ये डिफ़िकल्टीज आएंगी। और जब तक वो लोग बूढ़े होंगे, मतलब जब तक वो यहाँ तक पहुँचेंगे तब शाम हो जाएंगी, मतलब उनकी भी ज़िंदगी की शाम हो जाएंगी, तो उनको वो चीज़ का सामना न करना पड़े, मतलब दे शुड नॉट फेस द सेम डिफ़िकल्टीज। He too must cross in the twilight time, my friend, that is why I am building a bridge here. Yes, so isn't it a beautiful poem, children? Did you all, I think you all love this poem, and now you understood the real meaning of the poem, कि ऊपर से कुछ और होता है, उसका पोएट्री का हमेशा मीनिंग डिफरेंट होता है, क्योंकि इट ऑलवेज कैरीज टू मीनिंग्स। आप जो रीड करते हो वो सुपरफिशियल, लेकिन उसको अगर गहराई से देखा जाए तो यू, एंड आई टेल यू चिल्ड्रन, इफ यू रीड दिस पोएम अगेन एंड अगेन, यू विल अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द पोएम, मतलब रियल चीज़ वो पोएट हमें क्या कहना चाहता है उसकी आइडिया और क्लियर हो जाएगी। आई नो इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल पोएम, एंड आई वुड लाइक यू ऑल टू रीड इट ट्वाइस एंड ट्राइस, एंड विथ स्लोली क्लोजिंग, यू नो लाइक दिमाग में सुकून से, एंड जस्ट पिक्चराइज, जो आप रीड करते हो उसको पिक्चराइज करो आपके दिमाग में। दिस रियली इज़ अ लवली पोएम। आई होप यू ऑल enjoyed. See you next in the next lecture. Thank you children for being with me.